Ninth class. Physics. Solved paper. 2025. Federal Board. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सारे चेक करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर लॉन्ग पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। Let's define the vector first. A vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely। यानी कि वेक्टर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम and torque are vectors। A scalar is that physical quantity which needs magnitude only to describe it completely। Distance, speed, mass, time, temperature and energy are scalars। Question number 1, compare center of mass and center of gravity। Let's define the center of mass first। Center of mass of a body is that point where the whole mass of the body is assumed to be concentrated center of gravity। Center of gravity is that point where the total weight of the body
appears to be acting. Question number 2. A train traveled a distance of 30 kilometers in 7 minutes and 30 seconds. What is its speed? Convert the speed in kilometers per hour. First of all, we'll have to put the data. 30 kilometers is the distance. Distance will be usually denoted by S, 30 kilometers. First of all, we will convert the kilometers into meters because that's a unit is meter. So it will be 30,000 meters. Now time, which is usually denoted by small t, it is 7 minutes and 30 seconds. 7 minutes means 7 multiplied by 60. Through this, we will get the seconds. 7 multiplied by 60 will be 420 plus 30. We will get 450 seconds. What is the speed? Speed is usually denoted by V. S is equal to Vt or V is equal to S by T. After putting the values, we will get a required answer. Distance is 30,000 meters. Time is 450 seconds. Let's solve it on the calculator. After solving on the calculator, we find speed is 66.67 meters per second. Convert the speed in kilometers per hour. Let's check the speed in kilometers per hour. Speed is 66.67 meters per second. For converting it in kilo, we will have to divide it with the 1000, and for converting it in hours, we will have to multiply it with 3600. We will get kilometers per hour. Let's check it on the calculator. After multiplying 66.67 by 3600, we will get 240,012 divided by 1000 kilometers per hour. Through this, we will get 240.012 kilometers per hour. Question number 3. What kind of motion does a butterfly have? Briefly describe the kind. Butterfly has random motion. Random motion is a type of translatory motion.
First we will define the translatory motion, then we will define the random motion. If the motion of the body is such that every particle of the body moves in the same direction. Motion is called translatory. It has three types. Linear motion, circular motion, and random motion. Random motion is also called irregular motion. Let's define the random motion. If the body moves along an irregular path, motion is called random motion. Question number 3. Compare magnetic and non-magnetic materials. Magnetic materials stick to magnets and can be magnetized. Non-magnetic materials do not stick to magnets. And
be magnetized. Magnetic materials have magnetic domains. That can align in one direction. But non-magnetic materials don't have magnetic domains. Magnetic materials can be used in making electromagnets and generators. Non-magnetic materials can be used for making non-magnetic tools iron, and nickel are magnetic wood and glass are non-magnetic. Question number 4. A car has kinetic energy. If its velocity is doubled, by what factor its kinetic energy would change?
डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। अगर वेलोसिटी हो जाए डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। वो कैसे, वो भी अभी चेक करते हैं। पहले आप ये सेंटेंस लिख लें। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी increases by a factor of 4. We can also say that it becomes 4 times greater. अब काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी डबल कर देनी है। जब वेलोसिटी डबल करेंगे तो हमारे पास एक नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ज़ाहिर है वेलोसिटी डबल कर देने से काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज होगी नई वाली काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कोई और नाम दे देते हैं, KE1 कह देते हैं। चलिए, हमने क्या किया, V को डबल कर दिया, 2V कर दिया। तो ये क्या हो गया, हाफ m 2 = 4 V स्क्वायर। अब मैं ये कर रहा हूँ, 4 को बाहर लिख के बाकी उसी तरह लिख रहा हूँ, हाफ m v स्क्वायर। अब ये जो हाफ m v स्क्वायर क्या है, ये क्या है, पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, चलो मैं दोबारा एक दफ़ा इधर लिख लूँ, आपको समझ आ जाए। 4 टाइम्स हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 1 वाली यानी कि नई वाली, वो हमारे पास क्या आ गई, 4 टाइम्स पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए हमने लिखा है इफ वेलोसिटी इज डबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। इफ दूसरा सेंटेंस भी आपको लिख देता हूँ, वो भी लिख लें बेशक। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी becomes 4 times greater. An object weighs 200 Newton on Earth while 50 Newton on an unknown planet. Find gravitational field strength on that planet. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप ये है कि मैथ्स तो चेंज होगा नहीं, आप जिस मर्जी प्लैनेट पे हों, आप मैथ्स फाइंड कर लें तो जी उसके अकॉर्डिंग फाइंड हो जाएगा। मसलन वेट ऑन अर्थ उसको हम W1 कह लेते हैं, वो है 200 न्यूटन्स। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ उसको हम स्मॉल जी कहते हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 मीटर्स पर सेकंड है, हम राउंड ऑफ करके उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा करते हैं। तो मैथ्स हम
पहले फाइंड कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का। तो W इज इक्वल टू mg हमारा फार्मूला है, तो अब W1 हमने कहा तो W1 लिख लेते हैं। W है जी 200 न्यूटन्स और मास हमने फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ज़ीरो दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो मास हमारे पास आ गया 20 kg। अब मास हमें पता चल चुका है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमने फाइंड करना है दूसरे प्लैनेट पे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन दैट प्लैनेट, उसको हम G1 कह देते हैं या G2 चलें कह लें, अब ताकि पजल ना हो। इसको आप G1 लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ना भी लिखें कोई मसला नहीं। ये W2 मैं इसको कह देता हूँ, जो 50 न्यूटन वेट है दूसरे प्लैनेट पे, वेट ऑन अदर प्लैनेट। क्योंकि डाटा के मार्क्स हैं तो डाटा आपने पुट करना है, लिखना है आपने ज़रूरी। इसको W2 कह देते हैं, ये 50 न्यूटन है। और फार्मूला क्या होगा, W2 इज इक्वल टू mg2। क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा। अब W2 हमें कितना गिवन है 50 और मास हमने कितना फाइंड किया जी 20, 50 न्यूटन्स और मास 20 kg। हमने फाइंड क्या करना है G2, तो G2 क्या आ जाएगा 50 न्यूटन्स डिवाइडेड बाई 20 kg। 0 से 0 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 न्यूटन पर केजी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Question number 5. Differentiate between contact and non-contact forces. A contact force is a force that is exerted by one object on the other at the point of contact. For example, thrust, air resistance, drag force, normal force, tension force, and elastic force. टेंशन फोर्स की जगह आप सिर्फ टेंशन भी लिख सकते हैं, इलास्टिक फोर्स की जगह आप इलास्टिसिटी भी लिख सकते हैं। अ नॉन contact
Force is a force between two objects which are not in physical contact. For example, gravitational force, electrostatic force, and magnetic force. Question number 5, and list 3 applications of Hooke's law. We use Hooke's law to design springs, to make weighing machines, to make shock absorbers, to make mattresses and cushions, and to make watches and clocks. Another very important role is in the measurement of Young's modulus. Hooke's law enables us to determine the elasticity of different materials in laboratories. इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे measuring of Young's modulus, वो भी यही चीज है. Question number 6, show 2000 nanograms in micrograms. तो
तो नैनोग्राम्स को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करके फिर माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो एक ग्राम जो है, बल्कि और आसान आपको बनवाते हैं, 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10 to raise power minus 9 grams। तो हमने 2000 नैनोग्राम्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2000 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 2000 नैनोग्राम्स के ग्राम्स आ जाएंगे और 2000 नैनोग्राम्स इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power minus 9 grams। तो अगर और अच्छा आप इसको लिखना चाहते हैं तो 2000 को 2 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power 3 कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 10 to raise power 3 और 10 to raise power minus 9 वे सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 to raise power minus 6 ग्राम्स आ गया, यानी कि 2000 नैनोग्राम्स में 2 into 10 to raise power minus 6 ग्राम्स हो गए हैं। अब एक ग्राम में 10 to raise power 6 माइक्रोग्राम्स होते हैं। अब उस तरफ चलते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to raise power 6 माइक्रोग्राम्स। हमने 2 into 10 to raise power minus 6 ग्राम्स को माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड पे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 into 10 to raise power minus 6 grams is equal to 2 into 10 to raise power minus 6 से मल्टीप्लाई हो गया, साथ 10 to raise power 6 ऑलरेडी था, ये माइक्रो का सिंबल है, तो 10 to raise power minus 6 और 10 to raise power 6 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोग्राम्स। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट है, वो भी आप देख लें। उसके लिए फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि 1000 नैनोग्राम्स इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। और तो हमसे क्योंकि 2000 पूछा जा रहा है, हम 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2000 नैनोग्राम्स इज इक्वल टू 2 माइक्रोग्राम्स। ये तो एक लाइन में क्वेश्चन एंड हो जाएगा, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा समझ रटा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ, derive a mathematical formula for it। इसमें हमने एक्चुअली प्रूव करना है कि प्रेशर जो है वो रो जी एच के इक्वल है, और दूसरा हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रेशर का क्या लिंक बनता है डेप्थ के साथ। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाती है, प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड increases with depth। और अगर यहाँ पे आप लफ्ज़ लीनियरली इंक्रीजेस लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी बात ठीक है। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड दिस डिफरेंस in pressure इनके टॉप पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है और बॉटम पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी अब बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। एंड दिस डिफरेंस इन प्रेशर
between top and bottom surfaces of an object in a fluid causes buoyancy. States that Archimedes' principle states that a body wholly or partially immersed in a liquid experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced. अब हम लिंक डिराइव करते हैं। फ्लूइड की डेंसिटी को हम कह देते हैं रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो डेप्थ from the surface उसको आप h कह लें, हाइट ही है वो, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, लिक्विड प्रेशर को हम P कह लेते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात नहीं अभी मैं कर रहा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने इसमें ऐड करना हुआ तो फिर वो थोड़ा लिंक चेंज हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन तो लॉन्ग में आना चाहिए था, लेकिन चलें शॉर्ट में आ गया, लेकिन डिटेल तो फिर हमने देनी है इसकी। अब W इज इक्वल टू mg ये हमें पता है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ये भी हमें पता है। तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुटिंग m इज इक्वल टू रो v इन इक्वेशन नंबर 1। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, रो v g, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को जब आप किसी हाइट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुटिंग v इज इक्वल टू a टाइम्स h इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, रो वॉल्यूम की जगह A टाइम्स H हो गया इंटू G।
अब प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स यहाँ पे क्या है? वेट, और इसकी हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, वो इसमें पुट कर देते हैं। रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसल, तो प्रेशर हमारे पास क्या आ गया? रो जी एच। अगर आप इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई करना चाहें तो फिर वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। Question number 7. Briefly explain system of gun and bullet using law of conservation of momentum. When a gun is fired, जब एक गन को फायर किया जाता है, the bullet moves forward, तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, and the gun recoils back, और गन पीछे की तरफ वापस आती है। When a gun is fired, the bullet moves forward and the gun recoils back. Due to law of conservation of momentum, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है। जब गन को हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है वो भी देख लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट चलें चेक कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum states that for an isolated system का मतलब ये होता है कि उस पर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। For an isolated system, total momentum of the system remains constant. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि किसी बैरूनी क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। अब फायरिंग से पहले तो बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि उनकी वेलोसिटी नहीं होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसका मतलब ये होता है कि उनका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। चलें लिख लेते हैं इस बात को। हैंस वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द बुलेट विल बी zero. So their
momentum will also be ज़ीरो। अब मतलब क्या है बात करने का कि फायरिंग से पहले वाला जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है, क्योंकि ना गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि जो मोमेंटम फायरिंग से पहले है वही मोमेंटम फायरिंग के बाद भी होना चाहिए, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum after the firing must also be ज़ीरो। यानी कि फायरिंग से पहले अगर मोमेंटम ज़ीरो है तो फायरिंग के बाद भी मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। अब फायरिंग के बाद जो मोमेंटम है वो ज़ीरो कैसे होगा, बस यही हमने उसको लास्ट सेंटेंस में बात बता देनी है। सो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बुलेट, अब हम फायरिंग के बाद की बात करने लगे हैं। सो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बुलेट मस्ट बी इक्वल and opposite to the backward momentum of the gun। यानी कि जो फॉरवर्ड मोमेंटम है बुलेट का और जो बैकवर्ड मोमेंटम है गन का वो इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, इसीलिए फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा। या आप ये भी कह सकते हैं फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम ज़ीरो है इस वजह से बुलेट का और गन का इनका मोमेंटम इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बुलेट मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द गन। क्वेश्चन नंबर 7, how are hydraulic lifts capable of lifting heavy loads? Show mathematically. Hydraulic lifts works on पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ के मुताबिक काम करती है। तो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी चलें चेक कर लेते हैं। एंड पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड में वो हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको अब हम वर्डिंग की फॉर्म देते हैं। एंड पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid is transmitted in all directions। ये तो होगी पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट। अब हम इसको मैथमेटिकली शो करते हैं। लार्ज पिस्टन और स्मॉल पिस्टन, तो पिस्टन कंसिडर करते हैं उनमें प्रेशर, फोर्स, एरिया, इनको मुख्तलिफ नाम दे देंगे। मसलन अभी प्रेशर अप्लाइड ऑन लार्ज पिस्टन उसको हम चलें P1 कह लेते हैं, और प्रेशर अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन
उसको हम P2 कह लेते हैं। अब 1 वाला लार्ज है और 2 वाला स्मॉल है, अभी आप अपने जहन में रखना है। तो इसी तरह फोर्स अप्लाइड ऑन लार्ज पिस्टन, उसको हम F1 कह लेंगे, क्योंकि लार्ज पिस्टन के प्रेशर को P1 कहा था, तो इसकी फोर्स को हम F1 कह लेते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, इसको फिर F2 कह लेते हैं, क्योंकि प्रेशर अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन उसको P2 कहा था, तो फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन उसको F2 कह लेते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, उसको हम कैपिटल A1 कह लेते हैं, और एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन उसको हम A2 कह लेते हैं। अब पास्कल्स लॉ ने भी हमें क्या बताया था कि हर तरफ प्रेशर एक जितना ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि जितना प्रेशर आप कह लें राइट साइड पे उतना लेफ़्ट पे होगा, जितना अप पे उतना डाउन होगा, तो हमने P1 P2 कह लिया। यानी कि जितना लार्ज पिस्टन वाली साइड पे प्रेशर है उतना ही प्रेशर स्मॉल वाली साइड पे भी होगा। प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P1 को हमने F1 ओवर A1 कह लिया, P2 को हमने F2 ओवर A2 कह लिया। तो अब हम F1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में F1 इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A1। बस इतना ही लिंक आपने जनरेट करना था। इफ़ A1 इज़ ग्रेटर दैन A2, सिमिलरली F1 इज़ ग्रेटर दैन F2। तो इसका मतलब क्या है? अ स्मॉल फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन कैन lift a heavy load on the large piston. Then a small force on a small piston can lift a heavy load on the large piston. That's it. Question number 8. How powerful is car's engine if it does 3 into 10 to the power 7 joules work in 1 minute? वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमें वर्क कितना गिवन है? 3 into 10 to the power 7 joules। टाइम को स्मॉल t से शो करते हैं, वो 1 मिनट है। तो ऐसा यूनिट हमने यूज़ करना है, वो सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। अब पावर क्या था? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। आसान सी चीज़ है, वर्क की वैल्यू हमें गिवन है, टाइम गिवन है, पुट करके पावर निकाल लेंगे। वर्क है 3 into 10 to the power 7 joules और टाइम 60 सेकंड्स है। इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 500 और फिर 000 है जी, 500,000 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट है वाट। आप अगर किलो वाट में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लें तो किलो वाट बन जाएंगे, क्योंकि 1000 का मतलब है किलो। ये हो गया 500 किलो वाट। हॉर्स पावर में पूछे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं। तो ये जो आपके पास वाट है उसको आप 746 से डिवाइड करेंगे, किलो वाट को नहीं, वाट को, तो वो आपके पास हॉर्स पावर में आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेटर पे आ रहा है 670 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज इम्पल्स? हाउ इज इट रिलेटेड विद फोर्स? गिव इक्वेशन। इम्पल्स को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल फॉर्म को आप वर्डिंग दे दें, दूसरा जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिख लें। बस अगर मैथमेटिकल फॉर्म को आपने वर्डिंग में लेना है तो आप लिखेंगे इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और अच्छी डेफिनेशन क्या है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है इम्पल्स इज़ द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
अब यहीं से हम मैथमेटिकल फॉर्म बना लेते हैं। इम्पल्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो बस वहीं आप लिख दें इम्पल्स इज़ इक्वल टू, फोर्स के लिए एफ शो करते हैं, टाइम के लिए स्मॉल टी, तो इम्पल्स इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी, और इम्पल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल पी, इनके फाइनल मोमेंटम, डेल नहीं बल्कि पी एफ माइनस पी आई मैं लिखता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या आता है? एम वी, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, एम कॉमन ले लें, तो एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। Question number 9. A solid cylinder of height 1.25 meters and diameter of 2 meter has a mass 350 kg. Calculate its density. डेंसिटी एक्चुअली हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी का सिंबल है रो, ग्रीक लेटर है, वो हमने फाइंड करना है। डेंसिटी होती है मैस डिवाइडेड वॉल्यूम, तो मैस हमें गिवन है 350 kg, हम सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमें क्या क्या गिवन है जी? एक हाइट गिवन है और एक डायमीटर। हाइट को ऐसे शो कर लेते हैं 1.25 मीटर्स, डायमीटर गिवन है 2 मीटर, इट्स मीन रेडियस गिवन है एक्चुअली, क्योंकि d डिवाइडेड बाई 2 r आ जाता है, तो 2/2 हमारे पास 1 आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास 1 मीटर्स। अब वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से शो करते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 है, पुट कर लेते हैं, आर हमने 1 फाइंड किया था, 1 का स्क्वायर हाइट 1.25 मीटर्स है, तो बस इसको हम कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है। जब वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाएगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड वॉल्यूम उसमें पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 3.925 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक मीटर होगा, ऐसा यूनिट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मैस 350 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या है जी 3.925 क्यूबिक मीटर। इसको कैलकुलेटर पे आंसर चेक करते हैं क्या है, तो डेंसिटी आ गई 89.17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। Question number 9. Briefly describe the working of thermocouple thermometer. To form a closed circuit when two different metals भी लिख सकते हैं आप, when two different metals are joined together and their junctions are kept at different temperatures and electric current is produced in the circuit. Produced voltage is used to measure the temperature. Thermocouple thermometer works on the Seebeck effect. Question number
10. Compare permanent magnet and electromagnet. Strength of permanent magnet cannot be changed. परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन और ऑफ. और स्विच ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते. मतलब ये नहीं आप कर सकते कि कभी उसकी मैग्नेटिज्म आप ऑन कर लें और कभी ऑफ कर लें. इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटीरियल्स लाइक स्टील. अब इसके यूजेस भी कुछ देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मोटर्स, टॉयज एंड स्पीकर्स. अब चेक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज made by passing current through a coil. यानी कि किसी कॉइल में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी कि करंट पास करते हैं, तो वो कॉइल एक मैग्नेट बन जाती है. इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं. इसलिए हम कहते हैं इसकी मैग्नेटिज्म टेम्परेरी है. इट्स मैग्नेटिज्म इज़ टेम्परेरी. और उसी वक्त तक रहेगी जब तक करंट उसमें से फ्लो करता रहेगा. इट्स मैग्नेटिज्म इज़ टेम्परेरी एंड एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दैट मटीरियल. लोहे में से आप करंट पास करें, मैग्नेट बन जाएगा. जब तक करंट उसमें से गुजरती रहेगी, मैग्नेट रहेगा. करंट ख़त्म तो मैग्नेटिज्म भी ख़त्म. इट कैन ईजीली बी स्विच्ड ऑन और ऑफ. स्विच ऑफ करें, करंट का फ्लो ख़त्म तो मैग्नेटिज्म भी ख़त्म. स्विच ऑन करें, करंट फ्लो करेगी तो वो मटीरियल मैग्नेट बन जाएगा. इसके यूजेस भी देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक बेल्स. डोर बेल्स जो हैं, और भी किसी भी बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. कैन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन? एक्सप्लेन ब्रीफली. हाँ जी, पॉसिबल तो ये है. तो एग्जांपल्स भी इसकी चेक करते हैं. यस, इट इज़ पॉसिबल दैट velocity and acceleration can be in opposite direction. अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि एग्जांपल्स आपको बताते हैं. पहली एग्जांपल है गाड़ी का स्लो होना और स्लो होते होते रुक जाना. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग कार, velocity will be
forward, but acceleration will be in opposite direction. इसी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन का वर्ड भी यूज़ होता है इसी के लिए कि जब एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है तो। और क्या एग्जांपल है जी कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब आप किसी बॉल को बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड ऊपर की तरफ, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही होगी। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल will be upward, लेकिन ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। बट ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन ऑफ द acceleration will be in downward direction. Question number 11. Earth completes one revolution around the Sun in 36.25 days. Find the orbital speed of the Earth around the Sun if it is 150 million kilometers away from the Sun. पहले हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि टाइम हमें दिया हुआ है 365.25 डेज़। टाइम को यूजुअली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी हमारे पास क्या है? 365.25 डेज़। तो इसको जब हम 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आवर्स आ जाएंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। चलते चलते हम सेकंड्स तक पहुंचेंगे। इसी को जब हम फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। सेकंड्स पे पहुंचना है, मिनट्स तक पहुंच चुके हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो इसको हम दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे या डायरेक्ट आप 360 वाला काम भी कर सकते थे। बहरहाल ये हमारे पास सेकंड्स आ रहे हैं। अब हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि हमारे पास कितने सेकंड्स बन रहे हैं। तो कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 3159216 सेकंड्स। अब टाइम सेकंड्स में फाइंड हो चुका ये, क्योंकि हमने अपने फार्मूले में पुट करना है। अब और क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है? एक तो हमें दिया हुआ है रेडियस। अब कैसे पता चल रहा है वो रेडियस है? क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कल बन रहा होता है। ये जो 150 मिलियन किलोमीटर्स है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम ये सेंटेंस लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन मीन्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और वो कितना है? 150 किलोमीटर्स, इनके स्मॉल आर से हम उसको शो कर रहे हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो अब जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का, वो क्योंकि मीटर है, तो इसलिए मिलियन किलोमीटर्स को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले मिलियन वाला काम ख़त्म करते हैं, किलोमीटर्स लाते हैं। उसके लिए आपको 6 ज़ीरो देने पड़ते हैं। 150,000,000,000 किलोमीटर्स, और किलो का मतलब होता है 1000, तो 3 ज़ीरो में और देने पड़ेंगे। तो ये अब और क्या मीटर्स में, यानी कि 150
0.0000000 मीटर्स। फार्मूला S इज़ इक्वल टू VT। और अब ये सरकमफ्रेंस अर्थ का वो होता है 2πr, क्योंकि सर्कल हम उसको एक कंसिडर कर रहे हैं ना, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इनके डिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 2πr। तो 2πr इज़ इक्वल टू VT हो गया। वैल्यू हमने फाइंड करनी है v की, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो वो क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई t। वैल्यू सारी हमें पता है, पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। अब r की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो पुट करते हैं 150,000,000,000,000 मीटर्स। इसकी जगह आप 10 रेज़ पावर वाली फॉर्म अगर लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब रह गया टाइम, वो हमारे पास क्या था जी, सेकंड्स में आया हुआ था 315,92160 सेकंड्स। इसको सिर्फ हमने कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करना है तो हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट करके ये हमारे पास आ रहा है 2.9 इंटू 10 रेज़ पावर 4 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन? जस्टिफाई। पॉसिबल तो ये है, यस इट इज़ पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ स्पीड में चेंजिंग का नाम नहीं है, डायरेक्शन में अगर चेंजिंग है तो फिर भी वो एक्सेलरेशन नहीं है। इनके हम स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करेंगे। यस इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप or down, because acceleration is not only a change in speed but also a change in direction of motion। अब हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a circular path has acceleration without speeding up or slowing डाउन। सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे अब लॉन्ग क्वेश्चंस वाला। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे और चारों में और भी दिया जाता है। क्लास 9 फिज़िक्स पेपर 2025 फेडरल बोर्ड सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग, वो 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना है, फिर इसी तरह 2, फिर इसी तरह 2, फिर इसी तरह 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मैनोमीटर, मेक इट्स डायग्राम एंड लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशंस। अ मैनोमीटर इज़ अ U-shaped tube filled with liquid। और लिक्विड यूजुअली इसमें यूज़ कौन सा होता है? मरकरी यूज़ होगा या कूल्ड वाटर होता है।
A manometer is a U-shaped tube filled with liquid, mercury or cooled water. अब हम पहले इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं. डायग्राम ड्रा हो गई. अब हम इसकी जो 4 एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू measure gas pressure in laboratories, pressure difference in fluid flow experiments. फ्लूइड जो है वो जब गैस और लिक्विड दोनों की आपने बात करनी हो तो आप वर्ड फ्लूइड यूज़ करते हैं. इसका मतलब गैस और लिक्विड का मिक्सचर नहीं है. इसका मतलब है कि गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है. इसलिए हमने लिखा प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड फ्लो एक्सपेरिमेंट्स. It is used to measure gas pressure in laboratories, pressure difference in fluid flow experiments, pressure of gases in pipeline, and low pressure of gases. It is used to measure gas pressure in laboratories, pressure difference in fluid flow experiments, pressure of gases in pipeline, and low pressure of gases. 4 हो गई. एक और चलें लिख लेते हैं. It is also used to compare gas pressure with atmospheric pressure, ATM. It is also used to compare gas pressure with atmospheric pressure. Question number 3. What is meant by base physical quantities and derived physical quantities? Give 3 examples of each with symbol and their SI unit. Let's define the base physical quantities. First, the quantities which are independent of the other physical quantities are called base physical quantities. The quantities which are independent of the other physical quantities are called base physical quantities. तो टोटल तो ये 7 हैं. देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. तो 7 बेस यूनिट्स भी होंगी. उसकी चलें बाद में बात करते हैं. पहले हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर लेते हैं. अब यहीं ऊपर वाली डेफिनेशन लिख के आप इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट लिख दें तो वो बन जाएगी डेफिनेशन. ये भी कह सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्राम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, वो भी बन जाएगी. ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आप लिख सकते हैं. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी
defined with reference to base quantities. Derived physical quantities are the quantities which can be defined with reference to base quantities. Up next, I give 3 examples of each with symbol and their SI units. तो अब हम कोई सी 3 बता देते हैं. टोटल तो 7 है ना बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. वो लेंथ मैस टाइम वाले टेबल की मैं बात कर रहा हूँ. तो कोई भी 3 बता दें. लेंथ मैस टाइम बेशक कह दें. पहले वाली 3 वही हैं. 3 बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, mass एंड टाइम. अब लेंथ के लिए एल यूज़ होता है, स्मॉल एल. mass के लिए स्मॉल एम. टी के लिए स्मॉल टी, टाइम के लिए स्मॉल टी. अब आप यही बता दें देयर सिंबल्स आर एल, एम एंड टी रिस्पेक्टिवली. अब हम इनके यूनिट्स की बात कर लेते हैं. लेंथ का मीटर, mass का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड एंड देयर SI यूनिट्स आर मीटर. आप स्मॉल एम इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर का होता है. किलोग्राम, kg भी लिख सकते हैं. एंड सेकेंड स्मॉल s भी लिख सकते हैं. एंड देयर SI यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. अब डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं. ये काफ़ी सारी हैं. जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ के अलावा क्वांटिटीज़ हैं, बेस वो जो 7 है, उसके अलावा सारी की सारी डिराइव्ड है. कोई भी आप लिख सकते हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर स्पीड, एरिया एंड वॉल्यूम. अब इनके सिंबल्स भी बताते हैं. एंड देयर सिंबल्स आर, स्पीड के लिए यूज़ होगा स्मॉल वी, एरिया के लिए कैपिटल ए और वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी. साथ ही हम इनके SI यूनिट्स भी बता देते हैं. देयर सिंबल्स विद SI यूनिट्स आर वी. अब देखें वी स्मॉल है और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है. एरिया कैपिटल ए से शो होता है और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं. m⁻². और क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम का यूनिट है, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीज़ें आ रही होती हैं ना. मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के लॉ हर जगह पे वैलिड नहीं है. जिस जगह पे वैलिड नहीं है हमने वही बताना है इस क्वेश्चन में कि किस किस जगह पे न्यूटन के लॉ फेल हो रहे हैं. लिमिटेशंस का ये मतलब है न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस. मसलन कहाँ पे वैलिड नहीं है? जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं रहता. बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या मुराद है? स्पीड ऑफ लाइट. ये बहुत ज़्यादा स्पीड है. एट वेरी हाई स्पीड न्यूटन्स लॉज फेल. अब हम वो बात लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट वाली. दे आर एप्लीकेबल ऑन एट वेरी स्लो स्पीड. जहाँ पे बहुत स्लो होगी. बहुत स्लो से मुराद क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत स्लो. मसलन 200-400 किलोमीटर ये स्लो नहीं है, उसमें वैलिड हैं. दे आर एप्लीकेबल एट वेरी स्लो स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, और कहाँ पे वैलिड नहीं होते जी? जहाँ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. दे आर आल्सो not applicable for very tiny small particles like electron and proton.
और अगर मास को आप कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो तब भी न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का F इक्वल टू एम में, अभी हम उसकी बात करने लगे हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन will be applicable only when mass is constant. Newton's second law of motion will be applicable only when mass is constant. अगर mass variable है यानी कि एनर्जी में चेंज हो रहा है फिर ये वैलिड नहीं होंगे, वो हाई स्पीड पे ही होता है। नेक्स्ट क्या है जी, न्यूटन्स लॉज डोंट give accurate results in the presence of strong gravitational field. अगर gravitational field बहुत strong है तो भी न्यूटन के लॉ accurate result नहीं देते। न्यूटन्स laws don't give accurate results in the presence of strong gravitational fields. एक इंटरेस्टिंग बात आप और भी बताते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से कि दे आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जिसमें इनर्शिया हो, तो जिसमें इनर्शिया नहीं हो उसमें वैलिड भी नहीं होते। दे आर वैलिड ओनली इन inertial frame of reference. Question number 4. Briefly discuss any 10 fields of physics. Let's check the most important 10 fields of physics. Number 1 is heat. Heat is the study of temperature and energy. Heat is the study of temperature and energy. For example, heat in engine. Heat is the study of temperature and energy. For example, heat in engine. Next important field of physics is mechanics. Mechanics is the study of motion. Mechanics is the study of motion. For example, motion of any moving object. Mechanics is the study of motion. For example, motion of any moving body in a straight line. Next one is optics. It is also very important field of physics. Optics को हम कैसे define करते हैं? Optics is the study of behavior of light. Optics is the study of behavior of light. For example, अब लाइट के जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनमें से किसी भी 2-3 का आप बता दें। जैसे मैं रिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन. Optics is the study of behavior of light. For example, reflection, refraction and diffraction. Sound. Sound is
The study of sound waves. Sound is the study of sound waves. For example, echo and ultrasound. Sound is the study of sound waves. For example, echo and ultrasound. Next is plasma physics. Plasma physics is the study of plasma state. Plasma physics is the study of plasma state. For example, sun. 5 fields डिस्कस हो चुकी हैं. अब नंबर 6 पे आते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ electric charges, circuits and current. Electricity is the study of electric charges, circuits and current. For example, energy savers and computers. Electricity is the study of electric charges, circuits and current. For example, energy saver and computers. Next field is magnetism. Magnetism is the study of magnetic fields. Magnetism is the study of magnetic fields. For example, MRI machines. Magnetism is the study of magnetic fields. For example, MRI machines. Number 6 हो गया. Number 7 हो गया. Let's start number 8, which is electromagnetism. Electromagnetism is the study of relation between electricity and magnetism. Electromagnetism is the study of relation between electricity and magnetism. For example, transformers. Magnetism is the study of relation between electricity and magnetism. For example, transformer. Number 9 is nuclear physics. Nuclear physics is the study of nucleus, nuclear energy and radioactivity. Nuclear physics is the study of nucleus, nuclear energy and radioactivity. For example, X-rays. Number 10 is astrophysics. Astrophysics is the study of
Universe. Astrophysics is the study of universe. For example, planets. Astrophysics is the study of universe. For example, planets. Question number 5. Discuss Earth's magnetic field in context of north and south poles with diagram and biomagnetism. तो पहले इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देख लें, फिर इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ये हमने एक अर्थ ड्रा की। अर्थ एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रही होती। ये आप समझ लें एक मैग्नेट है। इसके दोनों पोल्स हम बना लेते हैं साउथ एंड नॉर्थ। पोल्स को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो है साउथ मैग्नेटिक पोल है और जो डाउनवर्ड आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। नॉर्थ पोल से रे निकलेगी और साउथ पोल की तरफ आएगी। एक रे नहीं होगी, ज़रा काफ़ी सारी रेज होंगी जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ आ रही होंगी। एक लाइन अब ये मैं और ड्रा करूँगा, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पे भी पोल्स ही बन रहे होते हैं, अभी उनकी बात भी करते हैं। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के साथ जियोग्राफिक साउथ पोल होगा और साउथ मैग्नेटिक पोल के साथ जियोग्राफिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। अब ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है इसमें ऑलमोस्ट 11 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये आपने ज़हन में रखना। अब ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही होती है। अब इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल वो डिस्कस भी हो जाएगा। अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। Earth behaves like a huge bar magnet. Earth has a magnetic field that surrounds it. Earth has a magnetic field that surrounds it. Due to rotation, Earth has geographic poles. इनके आपने याद रखना है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो पोल्स होते हैं वो जियोग्राफिक पोल्स कहलाते हैं। ड्यू टू रोटेशन, अर्थ हैज़ geographic poles and due to magnetism, Earth has magnetic poles. रोटेशन की वजह से जो पोल्स हैं उनको हम जियोग्राफिक पोल्स कहते हैं और मैग्नेटिज्म की वजह से जो पोल्स हैं उनको हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। Due to rotation, Earth has geographic poles and due to magnetism, Earth has magnetic poles. A magnetic compass needle always points towards the magnetic north pole.
A magnetic compass needle always points towards the magnetic north pole. अब बायोमैग्नेटिज्म चेक करते हैं. Biomagnetism. Many living organisms can sense Earth's magnetic field. Many living organisms can sense Earth's magnetic field and use it for navigation. Many living organisms can sense Earth's magnetic field and use it for navigation. It is called biomagnetism. Birds and fishes use Earth's magnetic field. Birds and fishes use Earth's magnetic field. Question number 5. A hydraulic lift has 0.003 square meter narrow cylinder area while 0.9 square meter wider cylinder area. How much force must be applied at the narrow cylinder if a car weighing 1600 kg is to be lifted? पहले डाटा पुट करते हैं. एरियाज़ को A1 और A2 से शो कर लेते हैं. A1 है 0.003 स्क्वायर मीटर. फिर जो वाइडर सिलेंडर एरिया उसको A2 से शो कर लेते हैं 0.9 स्क्वायर मीटर. मैस हमें गिवन है 1600 kg. F1 हमारा एक्चुअल टारगेट है जो हमने फाइंड करना है. F2 इज़ इक्वल टू mg अप्लाई करके F2 तो फाइंड कर लेंगे. मैथ 1600 kg था, g है 10, तो F2 आ जाएगा 16,000 न्यूटन्स. अब प्रेशर हर साइड पे क्योंकि एक जितना होता है यानी कि P1 इज़ इक्वल टू P2, इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे. तो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया. P1 की जगह F1 ओवर A1 आ जाएगा, P2 की जगह F2 ओवर A2 आ जाएगा. तो बहरहाल ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ ये भी आप लिख लें. फॉर hydraulic lift pressure is same in both the directions. तो अब आप डायरेक्ट F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2 लिख लें. तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. F1 इज इक्वल टू A1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई A2. वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. F1 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 0.003 स्क्वायर मीटर्स थी. F2 हमने फाइंड किया था 16,000 न्यूटन्स. A2 हमें गिवन है 0.9 स्क्वायर मीटर. इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है 53.33 न्यूटन्स. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स? Give its formula. How this force is provided in case of motion of moon. Explain with diagram. पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर मोशन ऑफ मून और डायग्राम की बात करते हैं. A force which is necessary to keep an object moving in a circular path. A force which is necessary to keep an object moving in a circular path is called centripetal
फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पे मजबूर करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फार्मूला F इज़ इक्वल टू mv²/r। इसमें F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को, V वेलोसिटी को, R उस सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वेयर F इज़ द सेंट्रीपिटल force, m is the mass of the object, v is the velocity of the object, and r is the radius of the circle in which object is moving. R is the radius of the object in which object is moving. In case of motion of moon, in case of motion of moon which is moving around the earth, in case of motion of moon which is moving around the earth, gravitational force provides that necessary centripetal force. In case of motion of moon which is moving around the earth, gravitational force provides that necessary centripetal force. स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डायग्राम में ड्रा कर लें, सेंटर में अर्थ बनाएं, साइड पे उसका एक ऑर्बिट बना लें जिसमें मून रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी टू स्टेट्स ऑफ मैटर गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पार्टिकल स्ट्रक्चर विद डायग्राम। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, किसी दो के बारे में आपने बताना है। तो हम सॉलिड और गैसेस के बारे में आपको बात बताते हैं और इसकी डायग्राम भी ड्रा करते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इन सॉलिड्स particles are closed packed. In solids, particles are closedly packed in an orderly arrangement. इनके ऑर्डर में सारे particles exist करते हैं and strong molecular forces keep particles fixed in position. Particles can only vibrate. Particles can only vibrate about their mean position. Particles can only vibrate about their mean positions. अब गैसेस की बात करते हैं। Gases have neither fixed volume nor fixed shape। बल्कि पहले सॉलिड वाली डायग्राम आपको ड्रा करके बताते हैं। एक रेक्टेंगल आप ड्रा कर लें और रेक्टेंगल के अंदर आप पार्टिकल्स इस तरह ड्रा करें कि वो क्लोजली पैक हों, बिल्कुल क्लोज आपने एक दूसरे से मिले हुए ड्रा करने। बिल्कुल इस तरह जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये ड्रा करने के बाद अब हम
वापस गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी फ़िक्स शेप नहीं है और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। देयर मस्ट बी नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन द particles of gases. There must be negligible force between the particles of gases. Particles of gases move freely in all directions. अब गैस वाली डायग्राम भी ड्रा करते हैं। इसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रा करें, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर बना लें, 2 3 4 पार्टिकल इसमें बना लें बहुत दूर दूर, बस वो इनफ है। notespunjab.com पे आपको इसका ये रिटन सोल्यूशन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह।